हराम है। तो कैसा लगा आपको गार्ड ऑफ ऑनर? थैंक यू मैडम चीफ मिनिस्टर। नाउ विद योर परमिशन। एक सेकेंड, आपका इतना अच्छा आपने मेरे बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, मैंने आपके लिए इनाम भेजा है। अली दे दो उनको। And with your permission, now we want to call on the stage Hafsa Rao from BS Computer Sciences, University of Sirgoda, to please share her laptop journey. And with this news, Madam Chief Minister, कि आपने जो reforms की हैं, University of Sirgoda is ranked in the X category, which is equivalent to LUMS, alhamdulillah now, and these are your efforts to bring in the good vice chancellors who are delivering on ground. Respected Chief Minister, respected teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Hafsa. Before I say anything, ma'am, I want to say something to you. Ma'am, I'm a big fan of your personality. I adore you. Ma'am, if you allow me, can I come and hug you? Let me come upstairs and hug you. I'm currently doing Bachelor's in Computer Science from University of Sargodha. This year, the Honhar Scholarship gave my parents a new ray of hope. It didn't just remove their financial burden, it opened a door to my dreams. And today, this laptop in front of me, it's not just a gift, it's a bridge between real talent and real opportunities. Let me explain what I mean. The problems faced by students like me and the solutions that can change our future. Let's talk about the problems first. Number one, access to technology. According to UNESCO, more than 50% of students in developing nations, including Pakistan, still don't have access to basic tech like laptops and the internet. Can you imagine the frustration of a brilliant student unable to code, research, or even submit an assignment? Number two, lost potential. 60% of creative ideas die silently, not because of a lack of confidence, but due to a lack of tools. A simple missing laptop means
lost innovation. Number 3, unequal opportunities in STEM. Only 20% of students from low-income backgrounds make it to STEM fields like science, technology, or engineering. It's not because they're not capable. It's because opportunity never reached them. But the solutions tell us that there is hope. Number 1, innovation grows with access. The World Bank reports that when students have tech access, national innovation can rise by 30%. That rocket in the infographic. It's not just a symbol, it's a signal of how fast a country can grow when students are empowered. Number 2, Estonia's example. 20 years ago, Estonia gave every student a laptop. Today, it's a global tech hub. If they can do that, why not Pakistan? Number 3, double the job readiness. When students get laptops and scholarships, their job readiness doubles. We are not just getting education, we are preparing to build the future. Now let me bring it home with my own story. Before, I was Hafsa, a dreamer with no device, stuck in theory, unable to apply what I learned. But today, I am Hafsa, a coder, a learner, and a global collaborator, using this laptop to work with Python, build AI models, explore machine learning with TensorFlow, and analyze real-world data with Pandas. This device may seem small, but to me, it's a passport to progress. This is bigger than me. When governments invest in education and technology, they're not changing just one life. They're shaping the nation's future. Imagine thousands of students like me, equipped, connected, and confident. We can create apps to improve healthcare, design AI tools for agriculture, and build climate tech solutions for our communities. We can put Pakistan on the global tech map. To the students still waiting for their chance, don't lose hope. Your time is coming. And to our respected leaders, thank you for believing in us. This laptop is my promise. I will work hard, I will innovate, and I will make Pakistan proud. I'm really thankful to the Chief Minister, Mariam Nawaz. If she had not given me that opportunity and this laptop, I could not be able to learn Python, build AI apps, and dive into machine learning. I'm truly grateful to you. And like me, many students are now seizing this opportunity to make Pakistan a global tech hub. Thank you. Bravo, shabash. Madam Chief Minister, we also have Bushra Ali from Food Science and Nutrition. And honestly, we can, because of the shortage of time, we only present 1 or 2 case studies. But everybody in this hall and every student in Punjab is grateful because technology is the only way forward. So a big thank you to you from all the students in the hall. Thank you, madam. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बुशरा अली अकबर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरी बहन है। मेरा नाम आसिया मुस्कान है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में बीएस साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर की तालिबा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाब वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जनाबे वाला, मेरी कहानी लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है। मैं यहाँ मौजूद हज़ारों स्टूडेंट्स इस कथा से गुजर रहे हैं। जनाबे चीफ मिनिस्टर साहिबा, मेरे वालिद सरगोदा के एक गांव में ज़मींदार हैं। हम 4 बहन भाई हैं, चारों पढ़ रहे हैं। आज आपने मुझे लाखों रुपए का लैपटॉप दिया और मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिला जिसकी बिना पर मेरी सारी फीस आपने अदा कर दी। जनाबे वाला, मैं यहाँ मौजूद हर स्टूडेंट और हम सबके वालिदैन
आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपकी शफकत और ताउन के बगैर शायद हमारा तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमें लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स देने के लिए और हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया सीएम साहिबा। गॉड ब्लेस यू बच्चों। Now, शुक्रिया मैडम चीफ मिनिस्टर, आप ऐसी लाखों बेटियों के ख्वाब पूरे कर रही हैं जी। एंड अ बिग हैंड फॉर आवर चीफ मिनिस्टर सरगोदा डिवीजन। मैडम, नाउ विद योर परमिशन, वो कहती हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़ी होके आपकी तरह चीफ मिनिस्टर बनूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जरूर चीफ मिनिस्टर बनाए, आमीन। Madam Chief Minister, now we will seek permission for the documentary on the laptop scheme. Can we play the documentary for the laptop scheme? Thank मेरा नाम you. हफ्सा नूर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो मेरी फैमिली थी वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मुझे एक लैपटॉप की बहुत ज़रूरत थी, तो इसके लिए मुझे दूसरों से लेना पड़ता था, जिससे ना सिर्फ मेरी तालीम मुतासिर हो रही थी बल्कि मेरा वक्त भी ज़ाया हो रहा था। I was having inferiority complex when I used to see my fellows using laptop for assignments and quizzes and presentations. मैं मार्केटिंग और बिजनेस के स्टूडेंट हूँ और लैपटॉप या कंप्यूटर इस फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे लैपटॉप, बेशक वो छोटी कंपनी का हो या बड़ी का हो। इल्म और हिकमत की दुनिया में कदम रखने वाले हर तालिबे इल्म को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास होना चाहिए। यही वो असूल है जिस पर वजीर आला पंजाब लैपटॉप इनिशिएटिव की बुनियाद रखी गई है। सीएम लैपटॉप के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना था, जो कि बहुत इजी प्रोसेस था। मैंने सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई किया और इट वाज अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, लाइक 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे मुझे अप्लाई करने में, एंड इट वाज डन। तलबा और तालबात के हाथों में लैपटॉप देना दर हकीकत उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने की जानिब एक इंकलाबी कदम है। मैम मरियम नवाज साहिबा ने अपना वादा पूरा करते हुए हम 1 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रदान किए। Without any discrimination of political party and ethnic background. It is purely on merit base. वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज की क़यादत में ये मंसूबा अब सरगोदा पहुंच चुका है, क्योंकि हमारा मिशन है कि हर जिला, हर शहर, हर गांव तक इल्म की ये रोशनी पहुंचे, ताकि तलबा डिजिटल की दुनिया में अपना लोहा मनवा सकें और अपनी सलाहियतों को निखार सकें। उन्होंने हमारी इस ज़रूरत को समझा और हमें लैपटॉप प्रोवाइड किए। तो ये मेरे लिए एक लाइक ड्रीम की तरह है कि मुझे इतनी जल्दी लैपटॉप मिल गया और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। इंटेल कोर i7 13 जनरेशन्स के लैपटॉप हमें दिए गए हैं, जिसमें तालीमी सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हैं। इस लैपटॉप की मदद से आप फ्यूचर में अपनी असाइनमेंट्स खुद बना सकेंगे अपने लैपटॉप पर, और ऑनलाइन जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं उन तक मैं यहाँ पे रसाई हासिल कर सकती हूँ। ऑनलाइन अर्निंग अब मैं इसके ज़रिए कर सकूँ, यानी डिफरेंट टाइप की वेब डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग वगैरह, इन सब के लिए भी मुझे लैपटॉप चाहिए था। इस तरह मैं फाइनेंशियली खुद को भी सपोर्ट कर सकूँगी, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूँगी। Through this laptop, I will gain more confidence. I will get good grades as I will learn more practicals and experiments, and I will get good learning skills from this laptop. बुक्स या फिर PDF मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में है, वो मैं मोबाइल के बजाय लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन पे वो देख सकती हूँ, उन पे पढ़ सकती हूँ। And we will use these opportunities in better ways for our education and career growth. सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा एक नहायत ही विजनरी लीडर हैं। पहली दफ़ा पंजाब में किसी ने हमारी मुश्किलात पर भी नज़रसानी की है। वो हमारी माँ जैसी हैं, यानी एज अ वुमेन, एज अ मदर, जो डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ रही है उन्होंने हर उस चीज़ को हाईलाइट किया है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो आप हमारी फलाह के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए जो सिक्योर हो रहा है आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से, काइंडली आप इन्हें अपने कंटिन्यू रखें और हमारे लिए इस तरह के अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लाते रहो। आपकी शफ़क़तों से आगे बढ़ रहे हैं हम, नई तालीम, नए असबाब, नई उमंगें। वजीर आला पंजाब लैपटॉप इनिशिएटिव, कामयाबी की नई दास्तान, नया सफर, रोशन मुस्तकबिल, पंजाब का वादा।
Thank you, students of the Sargodha division. And now is time कि हम सब उस लीडर का स्टेज पे इस्तकबाल करें जिसकी वजह से लाखों स्टोरीज बन रही हैं, फाइनेंशियली एम्पावर हो रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं और पाकिस्तान और पंजाब टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स to stand up and clap for our Chief Minister. Welcome her on this stage. Zordar taaliyon mein Madam Chief Minister on the stage to give laptops. And can we have Mahanoor Naz, Jawad Shafkat, Saman Shaukat, Abdul Rahman, Kinza and Sadi on the stage for the laptops, please. Mahanoor Naz, Government Graduate College for Women, Mianwali. Second, Jawad Shafkat, Sargodha Medical College. Saman Shaukat, University of Sargodha. Abdul Rahman, University of Bakar. Kinza Iman, University of Mianwali. Sadia Munir, University of Sargodha. Umair Abbas Khan, University of Sargodha. Next in the queue are Honeyar awardees. So first we will call Naveed Ahmed, University of Mianwali, to please collect your check from worthy Chief Minister Punjab. Zainab Batul, Sargodha Medical College. Muhammad Ahsan, Thal University, Bhakhar. Iman Fatma, University of Sargodha. Wajiha Mariam, Government Graduate College, Bhakhar. Wajiha Mariam, Government Graduate College, Bhakhar. स्टूडेंट्स जोरदार तालियां इन तमाम अवार्डीज के लिए और लैपटॉप होल्डर्स के लिए. So can we now, all of you, with all the strength you have, जोरदार तालियों में मैडम चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करें स्टेज पे स्पीच के लिए. थैंक यू मैडम.
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, VC Sahab, faculty and staff of Sargodha University, thank you for hosting us. और मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों, मेरे आज के हीरोज, सुपर हीरोज, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इतनी खुशी हुई है सरगोधा आके। मुझे अभी मेरे गाड़ी में मोहसिन रांझा साहब बैठे हुए थे, वो मुझे बता रहे थे कि एक साल में सरगोधा का आपका ये चौथा विजिट है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो मैं बच्चों में सिर्फ आपको ये कहना चाहती थी कि आपका हक आपको देने के लिए मुझे बार बार चल के सरगोधा आना पड़ा तो मैं आऊंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, मैंने देख लिया, मैं अभी आपसे ये पिक्चर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। बच्चियों ने कहा कि वो मुझे हग करना चाहती हैं। आई नो दैट, मेरा भी दिल करता है कि मैं एक एक बच्ची को हग करूं, एक एक बच्चे के सर पे हाथ रखूं। तो मेरी तरफ से आप सबको एक वर्चुअल हग। बच्चों, मैं आप सबको, अच्छा, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने इतनी ग्लोरियस, इतनी जो हिस्टोरिक फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की है, मैं दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के तमाम बेटों और बेटियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और अभी जो बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा और जिन बच्चों ने वो मिली नगमा पढ़ा, अपनी टीचर की मदद से उन्होंने वो लिखा, तो मुझे ये एहसास हो गया, मैं जब वो सुन रही थी, मैं जब उसके अल्फाज देख रही थी, तो मुझे लगा कि मेरे मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत हाथों में है। आप जानते हो कि जो ऑपरेशन अभी, जो जंग हमने जीती है इंडिया से, उसका नाम क्या था? वेरी गुड। तो बयानुल मरसूस जो है वो कुरान पाक का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, जिसको अंग्रेज़ी में मोल्टन लेड वॉल कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फरमाई, जिसके लिए मैं आप सब की तरफ से आज इस पूरे सरगोधा यूनिवर्सिटी में होने वाले सरगोधा डिवीज़न के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ नहीं मौजूद, हम सब की तरफ से अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान एयर फोर्स को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, पुलिस, रेंजर्स और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज,